Welcome to Still Learning. Today we will be discussing debit and credit card, including their features, benefits, and how credit card works. We will wrap up with a quiz to test what you have learned. Let's start by understanding the basic meaning of debit card. A debit card is a payment card that allows you to access the funds in your bank account to make purchases or withdraw cash from an ATM. When you use a debit card, the money is directly debited or taken from your account, meaning you can only spend the amount of money you actually have अवेलेबल इन योर अकाउंट. डेबिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट कार्ड है जो आपको अपने बैंक अकाउंट के फंड्स का डायरेक्ट एक्सेस देता है. जब आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो, चाहे शॉपिंग के लिए हो या एटीएम से कैश निकालने के लिए, तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो मनी आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है. इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उतना मनी स्पेंड कर सकते हो जितना आपके अकाउंट में अवेलेबल है. अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी. डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड के जैसे बोरो नहीं करना पड़ता. मनी जो पैसे हैं वही खर्च होते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा स्पेंड करने का टेंशन नहीं होता. और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या कहीं दूर जाके पेमेंट कर रहे हो तो आप बिना कैश कैरी किए अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो. इसीलिए डेबिट कार्ड एक कन्वीनियंट और सेफ वे है अपने बैंक अकाउंट के पैसे यूज़ करने का बिना एक्स्ट्रा चार्जेस या इंटरेस्ट पे किए. Next, let's explore some key features of debit card. Direct access to funds. Debit cards are linked directly to your bank account, allowing you to access the funds you have deposited. So, debit card सीधा आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, जिससे आप अपने जमा किए हुए फंड्स को एक्सेस कर सकते हो. Immediate payment. When you make a purchase with a debit card, the money is immediately deducted from your bank account, unlike credit cards which allow for delayed payment. जब आप डेबिट कार्ड से परचेज करते हो तो मनी फ़ौरन आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है. ये क्रेडिट कार्ड से अलग है जिसमें पेमेंट डिले हो सकता है. नेक्स्ट, एटीएम एक्सेस. Debit cards can be used to withdraw cash from ATMs, check account balances and deposit money. डेबिट कार्ड का यूज़ आप एटीएम से कैश निकालने, अकाउंट बैलेंस चेक करने और पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. Next, widely accepted. Debit cards are accepted at a wide range of merchants, both online and in physical stores, anywhere that accepts the card network. So, debit cards काफ़ी जगह accept किए जाते हैं, चाहे वो online stores हो या फिर physical shops. Next, PIN security. Transactions with debit cards often require a personal identification number, providing an extra layer of security. Debit card से transactions करते वक्त आपको अक्सर एक personal identification number enter करना पड़ता है, जो एक extra security layer provide करता है. No interest charges. Since you are using your own money, there are no interest charges associated with debit card transactions. क्योंकि आप अपना खुद का पैसा यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगते, अनलाइक क्रेडिट कार्ड्स जहां उधार लेने पर इंटरेस्ट देना पड़ता है. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, लेट्स नाउ लुक एट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेबिट कार्ड. Convenience. Debit cards allow for easy and quick transactions, eliminating the need to carry cash. You can use them for in-store purchases, online shopping and bill payments. So, convenience means debit card से आप आसान और जल्दी transactions कर सकते हो बिना कैश कैरी किए. आप in-store purchases, online shopping और bill payments के लिए भी यूज़ कर सकते हो. No debt risk. Since you are spending money directly from your bank account, there is no risk of accumulating debt as you might with a credit card. This makes it easier to manage your finances and avoid interest charges. So, डेबिट कार्ड से आप सीधा अपने बैंक अकाउंट से मनी स्पेंड करते हो, इसीलिए आप पर कोई डेट या कर्जा जिसे हम कह सकते हैं उसका रिस्क नहीं होता जो क्रेडिट कार्ड में हो सकता है. इससे आप अपने फाइनेंसेस को आसानी से मैनेज कर सकते हो और इंटरेस्ट चार्जेस से बच सकते हो. Instant access to funds. Debit cards provide immediate access to your funds whether you need to withdraw cash from an ATM or make a purchase. डेबिट कार्ड से आपको अपने फंड्स का तुरंत एक्सेस मिलता है, चाहे आपको एटीएम से कैश निकालना हो या कोई परचेज करनी हो. नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स एंड डिस्काउंट्स. सम डेबिट कार्ड्स ऑफर रिवॉर्ड प्रोग्राम्स सच एज कैशबैक और डिस्काउंट ऑन परचेजेस, गिविंग यू एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर यूजिंग योर कार्ड. कुछ डेबिट कार्ड्स रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, जैसे कैशबैक या डिस्काउंट्स ऑन परचेजेस, जो कार्ड यूज करने पर एक्स्ट्रा वैल्यू देता है. ईज ऑफ यूज. डेबिट कार्ड्स आर इजी टू यूज फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शंस, वेदर यू आर पेइंग बिल्स, शॉपिंग ऑनलाइन और डाइनिंग आउट. अब डेबिट कार्ड का यूज़ हर दिन ट्रांजैक्शंस के लिए काफ़ी आसान है, चाहे आप बिल्स पे कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या डाइनिंग आउट. नेक्स्ट, let's dive into the details of credit card, starting with the meaning. What is credit card? Credit card is a financial tool that allows you to borrow money
from a bank or financial institution to make purchases or withdraw cash up to a certain credit limit. Unlike debit card, which draw money directly from your bank account, credit cards let you borrow money with the expectation that you will repay it later, typically with interest if you don't pay off the full balance by the due date. क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल होता है जिससे आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे उधार ले सकते हो जो आपको परचेजेस करने या एटीएम से कैश निकालने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये सब एक सर्टेन क्रेडिट लिमिट तक होता है। डेबिट कार्ड से अलग जो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट करता है, क्रेडिट कार्ड आपको उधार लेने की फैसिलिटी देता है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आप वैसे समझ लो कि आप बैंक से लोन ले rहे हो और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये मनी वापस करोगे। अगर आप पूरा बैलेंस ड्यू डेट से पहले दे देते हो तो आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप पूरा अमाउंट ड्यू डेट तक नहीं चुका पाते तो जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है जो हर बैंक का अलग अलग होता है। Next, let's break down the main features of a credit card. Number first is credit limit. This is the maximum amount you can borrow using the card. The limit is determined by the issuer based on your credit history, income and other factors. ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से बोरो कर सकते हो। इस लिमिट को कार्ड इशूअर आपके क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम और दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड करता है। Revolving credit. Credit card offer a revolving line of credit allowing you to borrow up to your credit limit, repay it and borrow again. Revolving credit means credit cards एक revolving line of credit offer करते हैं, मतलब आप अपने credit limit तक पैसा borrow कर सकते हो, फिर repay करके दोबारा borrow कर सकते हो। Billing cycle and statement. Credit cards operate on a monthly billing cycle. At the end of each cycle, you receive a statement showing your purchases, total amount due, minimum payment required and the due date. Credit cards एक monthly billing पे पर काम करते हैं। हर बिलिंग साइकिल के एंड पर आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें आपके परचेजेस, टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड और ड्यू डेट मेंशन होती है। नेक्स्ट, मिनिमम पेमेंट। ईच मंथ you are required to make at least a minimum payment which is typically a small percentage of your outstanding balance. हर मंथ आपको अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस का एक छोटा परसेंटेज मिनिमम पेमेंट के रूप में देना होता है। ये रिक्वायर्ड होता है ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्जेस। इफ़ यू डोंट पे योर बैलेंस इन फुल बाय द ड्यू डेट, interest is charged on the remaining balance. The interest rate is usually expressed as an annual percentage rate. अगर आप अपना बैलेंस ड्यू डेट तक पूरा नहीं चुकाते तो बचे हुए बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये इंटरेस्ट रेट यूजुअली एनुअल परसेंटेज रेट के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेस पीरियड। Most credit cards offer a grace period typically between 21 to 25 days during which no interest is charged on a new purchases if the balance is paid in full by the due date. ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स एक ग्रेस पीरियड ऑफर करते हैं जो लगभग 21 से 25 डेज का होता है। इस पीरियड के दौरान अगर आप पूरा बैलेंस ड्यू डेट तक चुका देते हो तो नए परचेजेस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। Next, now let's move on to the benefits of using a credit card. First, building credit history. Responsible use of a credit card can help build and improve your credit score, which is important for future financial needs like loans and mortgages. अगर आप क्रेडिट कार्ड का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हो तो आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड और इम्प्रूव कर सकते हो जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स जैसे लोन्स और मॉर्टगेजेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। मेनी क्रेडिट कार्ड्स ऑफर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कैशबैक, पॉइंट्स और ट्रैवल मील्स विच कैन बी रिडीम्ड फॉर वेरियस बेनिफिट्स। काफ़ी क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जैसे कैशबैक, पॉइंट्स या ट्रैवल मील्स जो आप वेरियस बेनिफिट्स के लिए रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट, कन्वीनियंस। क्रेडिट कार्ड्स आर वाइडली एक्सेप्टेड मेकिंग देम अ कन्वीनियंट पेमेंट मेथड फॉर बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन ट्रांजैक्शंस। एज यू ऑल नो, क्रेडिट कार्ड्स हर जगह वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं जो इन्हें ऑनलाइन और इन पर्सन ट्रांजैक्शंस के लिए काफ़ी कन्वीनियंट पेमेंट मेथड बनाता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी क्रेडिट। दे प्रोवाइड एक्सेस टू फंड्स इन इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हेल्पिंग यू मैनेज कैश फ्लो। ये आपको इमरजेंसीज या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के वक्त फंड का एक्सेस देते हैं जो आपकी कैश फ्लो मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। सम क्रेडिट कार्ड्स ऑफर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट डील्स एंड एक्सेस टू स्पेशल इवेंट्स और सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल टू नॉन कार्ड होल्डर्स। कुछ क्रेडिट कार्ड्स एक्सक्लूसिव डिस्काउंट डील्स और स्पेशल इवेंट्स या सर्विसेज का एक्सेस देते हैं जो नॉन कार्ड होल्डर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। Now, this table outlines the basic functions and processes associated with credit card usage. So, step 1, credit limit. Issuer sets a maximum amount you can borrow.
बैंक या कार्ड इशूअर आपको एक मैक्सिमम लिमिट देता है जितनी आप उधार ले सकते हो। स्टेप 2, यूजिंग द कार्ड, मेक परचेजेस और विड्रॉ कैश, द अमाउंट इज एडेड टू योर बैलेंस। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग या कैश विड्रॉल कर सकते हो, जो अमाउंट आप स्पेंड करते हो वो आपके बैलेंस में ऐड होता जाता है। स्टेप 3, मंथली स्टेटमेंट, रिसीव अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल बैलेंस, मिनिमम पेमेंट एंड ड्यू डेट। हर महीने आपको एक बिल या स्टेटमेंट मिलता है जिसमें आपका टोटल बैलेंस, मिनिमम पेमेंट और ड्यू डेट लिखा होता है। नेक्स्ट, पेमेंट, पे द फुल बैलेंस टू अवॉइड इंटरेस्ट और मेक अ मिनिमम पेमेंट विच एक्रूज इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस। आप पूरा बैलेंस एक साथ भी भर सकते हो, इससे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या मिनिमम पेमेंट करके बाकी बचा हुआ अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड फीस, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अनपेड बैलेंस, फीस में अप्लाई फॉर लेट पेमेंट और एक्सीडिंग द लिमिट। अगर आप टाइम पर फुल पेमेंट नहीं करते हो तो अनपेड बैलेंस पर इंटरेस्ट लगेगा, अगर लेट पेमेंट या लिमिट क्रॉस होती है तो फीस भी लग सकती है। नेक्स्ट, क्रेडिट स्कोर, रिस्पॉन्सिबल यूज, टाइमली पेमेंट्स, लो बैलेंस हेल्प बिल्ड अ पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री एंड इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हो और बैलेंस लो रखते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। Before we conclude, it's time for a quick quiz. Share your answers in the comments and I will be sure to check them out. So, let me read the quiz question for you. Which card usually requires you to pay off the balance at the end of each month to avoid interest? Options: debit card, credit card. What do you need to enter to make most transactions with a debit card? Options: signature, PIN, password. So, and that's it. If you have any queries, feel free to drop them in the comments. I will make sure to check each one. I am always happy to help. Until then, keep learning and growing.